मुझे एड्स बहुत पसंद थे। फिल्में वगैरह तो मैं देख ही रहा हूँ, टीवी सीरियल घर पे मम्मी उम्मी तो बैठ के वही देख रही है, पर जो बीच में एड्स आते थे ना मेरे को वो पसंद था। बोला यार ये 20 सेकंड में जो आके गया ना ये ज्यादा मजेदार था। वो मम्मी जो बाकी देख रही, मिहिर पता नहीं 4 बार मर के वापस आया, बोला अरे अंडरटेकर शर्म आ जाएगी भाई, इतना इतना कौन आता है? तो बोला अरे पिछले एपिसोड में तो मारा था ही। Content creation in 2010 was all about writing plays, writing advertisements, writing some movies or books. That was content creation. But in 2022, content creation is all about social media, creating content for Instagram, YouTube, TikTok, etc. etc. Now, in these years, there have been so many content creators who have come and gone. But in today's podcast, we have a content creator who has been creating content during the time of 2010, that is for plays, for advertisements, plus the content creator of today's age as well, creating content for Instagram. And oh boy, he's doing a great job. And today's guest speaker that we have on our podcast, trying to inspire all budding content creators right now and in the future in social media, is Mr. Rohit Bharti. His story, I felt, is very, very inspiring, the way he has engulfed in his journey on content creation. So I hope while you listen, you get inspired. And if you want to be the first ones to listen to all our podcasts before anyone else, we upload these podcasts on Spotify 48 hours before YouTube. So my name is Anil Lobo and you're listening to Raina Tours podcast. Hope you have a great time listening to this one. So Rohit, thank you so much for joining in. अरे बस क्या? हाथ मिला. Okay, before we start your journey, I just want to know, I really want to know about content creation, how you started. But first question to you is, if not content creator, then what would you be? Then what would I be? I'd be a writer. अच्छा, let's chuck anything creative. Creative में कुछ नहीं, कुछ भी creative में नहीं. Okay, I suppose in creative field was not there only. Yeah. Then what? You know, surprisingly, content creator wasn't my first choice ever in my life. The creative side. I was supposed to join Air Force. In my 12th grade, I gave an exam for National Defense Academy, and I got my admission also. But my mom didn't allow me to join because before that for 10 years I was studying in a hostel. So she was like, at least college घर पे. तो मतलब तो give up, तो खत्म वो नहीं हुआ. Okay, so I think now it's become interesting. From Air Force, how you became content. I mean, again, before we go, how has the journey been? मतलब from the start, when you said कि हाँ चलो let's do this. From that day till now, if you have to sum up quickly, how was the journey? Dhamal. In one word, I'd say it was absolutely fantastic. I'm not gonna lie, especially because since my wife came into the picture in the last 6 months, I haven't evolved as much I have evolved in these 6 months. So because in the beginning you're learning by yourself and there is no third person really telling you, because in this field there is no expert as such. It keeps on changing. You know, today I can't tell you, Acha, Anil, this is my video, how do you like it? You tell me what are the things that I have to do to make changes, to become better. Your purview of things will be different than mine. Obviously. Yeah. So, and then you never know what might work. That is the best part. You see different social media platforms have come. So when I started, there was absolutely nothing as such. YouTube 2005, 2006, when YouTube came in, versus today you have like 10 social media platforms, all of them doing extremely well. Yeah. So I think as a content creator, this is the right time to be wherever you are, just create. So the overall journey has been fantastic. In 10 seconds or 1 minute of this interview, I feel very awkward because we are talking in English. I don't know. I feel when we're talking Hindi, 15 minutes before जब हम लोग हिंदी में बात करें, was much more chill. Scene क्या? मेरे को क्या लगा? मैं बताऊँ लफड़ा क्या? मेरे को लग रहा है तेरा ऑडियंस जो है वो मेरे को लगा शायद ऑडियंस को अपना भाषा समझ में नहीं आएगा. We can actually mix not. हम मराठीत बोले है ना, काय टेंशन का. That will be better. ठीक है, so let's start the journey. I want to know, what did you do in college? And it's obviously every good content creator, the journey मतलब starts. अच्छा, good. हाँ, obviously यार, तब से कीड़ा तो वहाँ से होता है कि स्कूल में कुछ तो कहीं ना कहीं पता चलता है. Yeah, because mine was तो I think 3rd standard कहीं पे, where I got my first time ऐसा. What did you do? I got one small role because the role was of a shy kid. Okay. And I was the shortest. So I became 3rd standard kid of that show. So I was shy and I was short. So
बच्चा इसको बनाएंगे बिकॉज अच्छा है. So that is how I, and when I went, ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे बट ताली अच्छा बज रहा था. I was like, wow, ये करना है. करने का फुल फ्लेज हाँ, करने. फिर जब डैडी को बोला, फिर डैडी जो गुस्सा हुआ. मारा पढ़ाई कर चल. Then it was very might show journey is a little different. अच्छा. But obviously, I mean, whenever you hear about a content creator, first I think, I don't know about you, where did it start? What was that first thing you remember? Ki yaar, I wanted to do So this. something very similar. I was in maybe 4th grade and there's something called as नुक्कड़ नाटक. तेरे को पता है मतलब वो रास्ते पे जो स्ट्रीट प्ले. हाँ, नुक्कड़ नाटक. तो I was in my hostel और वहाँ पर क्या था पता है क्या? नुक्कड़ नाटक हो रहा था. नुक्कड़ नाटक is usually done by like the municipality वगैरह to spread awareness कि पेड़ लगाओ. that time. हाँ, that time मतलब मैं इतना बुढ़ा नहीं है. नहीं मतलब. हाँ, respect, okay. But now it is all competitions में तो होता रहता है. हाँ, तो अभी तो हर जगह हो. It's become a very normal thing, right? Normal. Yeah. So नुक्कड़ नाटक में I was in the 4th grade and because I used to speak very loudly. Because मैं जोर से बात कर रहा था, बोला हमको एक चाहिए जो आगे खड़ा रखे चिल्लाए. So they wanted a kid who can grab attention. मैं बोला और क्या चाहिए? मेरा लगा they wanted to keep quiet. Keep quiet. मेरा exact opposite है because I had to go and scream on the street. मैं बोला ये तो मैं नहीं करता. You remember dialogue? नहीं, it was something to do with Marathi. It was something to do with, if I don't like exactly I don't know, but it was something काय करायचंय. Something like झाडे लावायचंय. मतलब something like that. कि जो झाड़ लगाना है, क्या करना है, झाड़ लगाना है. So that was my first time where I'm in like a crowd and like everybody's standing and I'm so short and I'm looking at everyone and by the time it ends, clap and obviously my teacher putting me this kid will thank you and then uske baad se it began. But my major interest towards content creation per se, I got it when I was maybe in like 9th grade or 10th grade. उधर क्या हुआ था ना, मुझे एड्स बहुत पसंद थे. फिल्में वगैरह तो मैं देख ही रहा हूँ, टीवी सीरियल घर पे मम्मी तो बैठ के वही देख रही है, पर जो बीच में एड्स आते थे ना मेरे को वो पसंद था. बोला यार ये 20 सेकंड में जो आके गया ना ये ज्यादा मजेदार था. वो मम्मी जो बाकी देख रही हो, मिहिर पता नहीं, हाँ वो सब जिंगल, मिहिर पता नहीं 4 बार मर के वापस आया. बोला अरे अंडरटेकर शर्म आ जाएगी भाई, इतना कौन आता है. तो बोला अरे पिछले एपिसोड में तो मरा था ही. तो आई वाज लाइक बट बैठना था ऑब्वियसली. दैट टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स इट वाज. हां उस संस्कारी गेम ऑफ थ्रोन्स था एक्चुअली. तो हम लोग घर पे बैठे हैं एंड आई वाज लाइक बैक टू बैक. तो एड्स आते थे एंड बिकॉज़ आई वाज इन हॉस्टल तो हमको उतना टीवी देखने नहीं मिलता था. तो जब घर पे आता था मैं टीवी से हटता ही नहीं था कि टीवी के सामने ही बैठा हूँ, वही देख रहा हूँ. एंड कार्टून वगैरह बहुत पसंद थे. तो ये जब एड्स आते थे ना आई वाज लाइक ये कैसे बनता है और ये 20 सेकंड में इसने मेरे को इतना मजे करा दिए. एंड अभी एसेंशियली रील्स पे अपन वही कर रहे हैं, टिकटॉक पे अपन वही कर रहे हैं. 15-20 सेकंड में वी आर गिविंग पीपल दैट थिंग. तो मुझे उस समय इंटरेस्ट था कि हाउ टू डू दिस एंड हाउ टू गो अबाउट इट. सो जब मेरा 12th ग्रेड खत्म हुआ ना, व्हेन जब मम्मी ने मुझे एनडीए में जाने नहीं दिया तो काउंसलर के पास मेरा भाई लेकर गया कि ये बंदा क्या करना चाहता है. मैं भी बहुत अनश्योर था बिकॉज मैं तो सोच के आया था भाई अपन जाएंगे देश के लिए लड़ेगा, फुल वैसा जोन था मेरा, ठीक है. बट फिर उसके बाद जब काउंसलर के पास गया तो काउंसलर ने बोला या तो मीडिया या तो फिर यू गेट इनटू टेक. तो मम्मी ने पूछा पैसा किधर है ज्यादा. तो उससे बोला कि अभी तो मीडिया में दिख रहा है, यू नो लाइक मीडिया में ऑब्वियसली ज्यादा फेम है, पैसा है, व्हाट एवर नॉट. तो वहां से देन आई गॉट इनटू अ कोर्स, सिर्फ मुंबई में अवेलेबल है ये कोर्स, कॉल्ड बीएमएम, बैचलर ऑफ मास मीडिया. या ये वो फेरेरा फेरी वाला अक्षय कुमार वाला नहीं है, IILTS ITUS वो नहीं है. In fact, even I wanted to do BMM, but बाप ने बोला नहीं. I do BCom. There's a lot of future. मतलब तू शाय कीड़े, तेरे को अलाउड नहीं है. It was literally like that. मतलब they didn't allow me to. I mean, डैड मत देखना. अरे बिंदास. So literally, because I was shy and I never didn't like speaking to people. But if it was a stage, then it's a different ball game for me. But because I was shy throughout, I was told don't do that. It's not going to help you. But अभी घूम फिर के वही कर रहा ना. हाँ यार, even in college, you know, I took BCom at the end. And BMM was there in my college, Thakur Boys Science and Commerce. I don't know if you know that. Kandivali. Yeah. The Bombay bro. हाँ, so BMM was doing well, but by the time I reached 3rd year, I was doing so many video making competition and all. End में I was heading their मतलब college fest जो होता था. Heading. In fact, BMM had to have the head student, but I was doing because, and that's where I decided कि यही करना है. Yeah, but मैंने बाद में बैंक ज्वाइन किया. वो एवरेज इंडियन किड रहता ना कि पापा मना कर रहे हैं, ये सब कुछ. बेटा गोल्ड मेडल लेकर आ गया ओलंपिक्स में, अच्छा इसके बाद का क्या सोचा है? अरे भाई. But I also won, you know, student of the year. And I still went and did banking. My God. Student of the year you won in college?
I won twice. I was in Goa. अच्छा In 12th standard in a different college, I won over there, and then in third year, Thakur College, I forgot 13, 14, I won. तुमको देख के लगता नहीं है But but ठीक है reason being, again, because हाँ दिखता तो नहीं हूँ मैं ऐसा. बैक बेंचर लगता है तो but ठीक है नहीं भाई I was front bencher. यार Front bench होने के बाद I was doing all this nonsense. According to एकेडमिक्स BCom. कैसा था तेरा I was bad, but I don't know. But in fact, final year I got 86, and I was like shocked because मतलब आगे वाला अच्छा third- था आगे वाला बंदा जो एग्जाम दे रहा I था he must feel be अरे यार intelligent. सच बोल रहा हूँ मैं. Topic Like है. everybody was shocked. 86 कैसे मिला ये बंदा बैठता भी नहीं. Third year I never sat because there was one on the other competitions. ये event वो event करके मैं बैठा ही नहीं फिर भी. हाय ला I really feel because उन्होंने कुछ तो जुगाड़ कर दिया. I really feel that. I really feel because it was one paper तो I didn't know what I wrote only. फिर भी मेरे को मिल अच्छे गया मिला है. हाँ, I was like, I'm telling you, I really felt I was studying. But again, coming कुछ तो back, scene coming था. back, coming back, coming back. Okay, so yeah, coming back to your journey, college. हाँ तो College ऐसा था. तो How was- वही तो जो बोला कि ये करना है कि ये करना है तो बोला कि भाई मीडिया में पैसा है मैं बोला चलो पैसे कमाते हैं फिर मीडिया में आया बीएमएम में आया एक तो बीएमएम का ये चीज है तू करता तुझे पता चलता देयर आर 60 और 70% गर्ल्स Oh, इन एवरी बीएमएम का Yeah. क्लासरूम यू विल फाइंड 60% 70% गर्ल्स और Yeah. सो उधर ऐसा ऐसा मतलब नथिंग टू डू विथ फ्रॉम माय टॉपिक व्हाट आई एम सेइंग बट इट वाज जस्ट वियर्ड इन द बिगनिंग तो और मैं जब मैं आया था ना तो मेरा लफड़ा क्या हुआ था आफ्टर 12th ग्रेड बिकॉज आई हैड टेकन साइंस 11th और 12th मैंने साइंस लिया था बिकॉज मुझे एनडीए ज्वाइन करना चलो था you have a normal story. मतलब लिया तो है science. हाँ हाँ साइंस Then you went. I was like अच्छा चल रहा है. नहीं बाबा स्टूडेंट में धमाल था बाय द वे लाइक How टॉप was 3 it? जब तू स्टूडेंट ऑफ द Top ईयर 3. जब तू स्टूडेंट ऑफ द ईयर बोला ना मैं 10th ग्रेड में स्टूडेंट ऑफ द ईयर था मैं फॉर 3 इयर्स आई वाज द स्कूल कैप्टन तो आई वाज लाइक दैट ब्राइट स्टूडेंट लाइक ऐसा लाइट मेरे को मुंह पे पड़ रहा ना वो ऐसा वाला अच्छा। प्रॉपर स्टूडेंट था मैं अभी भी मेरे अंदर वो गुड बॉय का वो बहुत ये है लाइक मेरा वाइफ से जब तेरा बात होएगा ना अभी अगले उसमें एपिसोड में शी विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ अगर 6 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है चाहे स्पीड कैमरा लगे फाइन पहुंचना है 6 नहीं फाइन नहीं ज्यादा हो गया Yeah. फाइन नहीं देगा मैं पर फिर भी so I did all of those things and then जब बीएमए में मैं आया ना तो हाँ so then बीएमए में in the third year there is a different course that you have to take either advertising or जर्नलिज्म सो मेरे को एडवर्टाइजिंग बचपन से पसंद था इस साइड मेरे को एड्स कैसे बनते हैं ये बहुत पसंद थे फिर मुझे जब एक्चुअली स्टार्ट किया तब पता चला डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग वो सब बाद में आता है पहले आइडिया क्रिएशन आता है सो आई वाज लाइक ठीक है पहले मैं आइडिया क्रिएट करेगा उसके बाद मैं ही डायरेक्ट करेगा मैं ही वो सब करेगा ठीक है फिर मैं लिखने लगा अब वो लिखते आई स्टार्टेड राइटिंग एंड मेरा उस टाइम पे जो एड का टीचर था कॉपी राइटिंग का जो टीचर था उसने मुझे स्ट्रेट अवे इंटर्नशिप दिया बोला कि तू आजा मेरा एड एजेंसी ज्वाइन कर ले तो मैं बोला हाँ मैं करता इंटर्नशिप दिया एंड बिफोर व्हाइल आई वाज वर्किंग मैं बोला ठीक है तो उधर एक्चुअली व्हाइल आई वाज स्टडीिंग हाँ सॉरी तो उधर एक्चुअली एक लफड़ा हो गया आई डिडंट जॉइन बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक में दे रहा हूँ अभी कि मैंने जो कॉपी लिखा था ना उसने हमको एक कॉपी टेस्ट दिया था पूरे क्लासरूम को मैंने जो कॉपी लिखा था ना वो कॉपी मैंने 1 महीने बाद प्रिंट पे देखा ओके वही सेम कॉपी तो अब क्या पता नहीं दिमाग सेम हो गया क्या हो गया where you saw that which print सो इट वाज फॉर अ डिओड्रेंट oh तो डिओड्रेंट के लिए एक लिखा था मैंने कॉपी एंड दैट कॉपी इन अ मंथ्स टाइम आई सॉ इट ऑन अ प्रिंट एंड आई वाज लाइक ये तो मेरा है अभी तभी उतना इंटरनेट का रिसर्च नहीं कर पाया कि किस एजेंसी ने बनाया आई रियली वांटेड टू फिगर आउट कि वेदर ये मेरे टीचर की एजेंसी ने बनवाया क्या तो वो लफड़ा हो गया था क्या व्हाट वाज That- दैट अरे बहुत पुराना है अरे आपने वो टीचर अभी पढ़ाता है पागल अरे तो कि यार नहीं देखेगा मेरे को अभी भी याद नहीं है मेरे को नहीं याद आई हैव रिटन मोर देन एटलीस्ट लाइक 4000 स्क्रिप्ट्स देखो लग रहा है बिकॉज आई हैव डन सो मच रेडियो और रेडियो में एक दिन में 40 स्क्रिप्ट्स लिखता था मैं नॉट इवन एग्जैजरेटिंग we'll come to that so I will get to We'll come that to that. so as soon as I finished my college I knew कि I had to get into writing मेरे को मजा आ रहा था राइटिंग में क्योंकि एक्टिंग में ऐसा शौक नहीं था कि चेहरा दिखे कोई टेंशन नहीं मेरे को बस बनाने का था लोगों को हंसाने का था that's where I had figured it out so then once I started writing then I got a call from that point of time in 2010 रेडियो मिर्ची वहां पे से कॉल आया इंटरव्यू के लिए गया मनीष का ना नहीं वो रेड एफएम में नहीं कोई बात नहीं रेडियो का सब लोग को वैसे लगता है मनीष का सब जगह दो चार नाम सब लोग इधर उधर करते रहे कोई टेंशन नहीं उसमें मेरा छोटा भाई काम करता है रेड एफएम में स्टिल हाँ अभी भी मुंबई में देयर इज दिस कैरेक्टर वो करता है कॉल्ड मवाली भाई साहब का भाई oh he is your brother हाँ he real brother अरे एक्सक्यूज मी तो मैं बताऊंगा काहे को फिर हाँ एकदम 100% रियल ऑर्गेनिक wow तो हाँ सो ही डज वो लिखता भी है वॉइस ओवर भी वो करता है
तो वो अलग स्टोरी है। मेरा भाई मेरे को कॉपी करके आया, उसको पता नहीं था लाइफ में क्या करना है। वो बोला बड़ा भाई क्या कर रहा है, बीएमएम, मैं भी बीएमएम, रेडियो मैं भी ट्राई करेंगे। Oh, he's a younger brother. He's a younger brother, Wow, yeah, okay. yeah. And he's a like बहुत is doing touchwood, he's Yeah, he's doing doing so great. well in radio, yeah. Mawali bhai, everyone knows. हाँ हाँ. So and then उसके बाद I started working there and then I started writing. And I used to write ads जिनमें it's like वो फरहान अख्तर का कैरेक्टर था ना इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसमें बताया कि राइट डायमंड बिस्किट, डायमंड चिप्स या डायमंड बिस्किट जो भी Diamond वो biscuit. वो लाइक वो मेरा डिस्क्रिप्शन है, वो कैरेक्टर जो है ना मेरा डिस्क्रिप्शन है. Okay. दैट इज व्हाट आई वाज. दिन में मैं लाइक 40 एड लिखता था जिसमें 20 प्रॉपर्टी के एड्स होते थे. 5 एक सबसे बड़ा क्लाइंट आई रिमेंबर जॉनसन एंड जॉनसन तभी मिला था. दे यूज्ड टू मतलब जान निकाल लेते थे, इतनी स्क्रिप्ट लिखता था मैं. एंड इट वाज लाइक वो मदर के पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ता था. तो मेरा मिलेगा मेरा बच्चा सबसे बेस्ट, वो सब पाउडर और वो सब किया. So this was for the radio. This was for radio in Radio 2010. Mirchi. Yeah, in 2010 रेडियो मिर्ची जब मैंने ज्वाइन किया था, this is where I was writing ads. पर एड्स से अलावा मुझे ज्यादा मजा आता है इन रेडियो. देयर समथिंग ऑलवेज प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट. जो अपन ऑन एयर सुनते हैं ना, तो वो जो आरजेस जो वगैरह रहते हैं ना, वो लोग अपना शो प्रिपेयर करते हैं, पर म्यूजिक जैसे ही कोई और प्रिपेयर करता है. पर अदर देन म्यूजिक, अदर देन देयर ओन शो, एड्स भी चलते हैं. एंड पता है बीच में कुछ जिंगल्स आते हैं या कुछ फनी चीजें आती हैं, तो वो राइटर लिखता है. जो रेडियो में अलग से राइटर होता है. हाँ, तो मैं लिखता था वो. तो मुझे वो सब करना बहुत अच्छा लगता था. प्रोग्रामिंग काम वो मुझे बहुत पसंद था करने के लिए. सो आई यूज्ड टू डू इट बैक देन एंड आई यूज्ड टू रियली लाइक इट. एंड देन व्हाट हैपेंड, आई थिंक फिर एक 2011 में आई वन सम अवार्ड फॉर एन एड आई हैड रिटन. इट वाज वो था, इट वाज, सो हम लोग ने देयर वाज दिस कैंपेन कॉल्ड ब्लॉकबस्टर बुधवार. एवरी वेडनेसडे वी यूज्ड टू गिव आउट मूवी टिकट्स. So the voiceover I remember it started with, इसके लिए मुझे सिल्वर अवार्ड मिला था इस एड के लिए. So that started with कि माँ कौन होती है. एक माँ वो है जो अपने बच्चों का इंतजार कर रही है, बोलती है मेरे करण अर्जुन आएंगे. फिर उसका वॉइस ओवर आता है, एक माँ वो है जो अभी तक माँ नहीं बनी, नहीं समथिंग लाइक दैट. एक माँ वो है जो ड्रामेटिक होती है, एंड फिर एक माँ वो है जिसको देखने के लिए हम पैसे देखते हैं. फिर वॉइस ओवर आता है, ये क्या बोल रहा है, अरे मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ. एंड देन फिर आता है ब्लॉकबस्टर बुधवार, एवरी वेडनेसडे विद मूवी टिकट विद सिनेमा के टिकट. This is you I had written it, yeah. So that won an award, and then वो I'll tell you why. मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, but there's a connection. This is you have to do बड़ाई. I want to know. So what happened? So 2011 में उधर उसके लिए मेरे को अवार्ड मिला. एंड देन उसका एक वेबसाइट होता है अवार्ड्स का, जहाँ पे अपलोड्स होते हैं सारे अवार्ड्स. तो मेरा एक फ्रेंड दुबई में रेडियो में काम करता था. दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज रेडियो स्पाइस 105.4. रेडियो स्पाइस था उस समय 2012 में इन दुबई. सो वाज लिसनिंग टू दोज एड्स, लिसनिंग टू द अवार्ड एड्स. तो वहाँ की हेड ने, जब ये मेरा दोस्त सुन रहा था, म्यूचुअल फ्रेंड, जब वो सुन रहा था उसने सुना, तो उसने पूछा हु इज रिटन दिस. तो ही सेड कि वन ऑफ एक म्यूचुअल फ्रेंड है. तो उसको पूछ दुबई आना है क्या, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर राइटर्स. तो लोग ने दुबई से मेरे को ऑफर किया. ये मैंने मम्मी को बोला क्या करूँ, बोले पैसा देख क्या रेट है, मतलब 12 रुपए चल रहा है एक दिरहम. तो बोला मम्मी ठीक है, अगर जमा तो जमा, नहीं तो घूम गया दुबई में. बोला ठीक है. तो गया, पासपोर्ट था नहीं तभी तक. अभी तक क्या घूमने का कॉन्सेप्ट नहीं ना. बिकॉज सी आई टेल यू, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. हमारे लिए घूमना मतलब नानी का गांव. ठीक है, वो समर वेकेशन है, 1 महीने के लिए उधर जाओ, आम तोड़ो, पत्थर फेंक के मारो. वो सब ना, वो पत्थर फेंक के नहीं क्या मारते थे लेक वेक पे, वो सारी चीजें अपन नहीं की. वो अपना ट्रैवल था. ठीक है. हाँ, तो पासपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं. और उस टाइम पे आधार पे तो इनमें दुबई पे अलाउड नहीं करेंगे. तो हाँ, तो मेरा बड़ा भाई डॉक्यूमेंट्स में एकदम मास्टर है. उसने फिगर आउट किया किधर किधर क्या करके बोले ऑफर लेटर भेज, जो लोग फटाफट करेंगे, 1 महीने के अंदर मेरा पासपोर्ट रेडी. ठीक है, एकदम लीगल वे से था, कोई लफड़ा नहीं. पासपोर्ट रेडी. एंड देन उसके बाद एक्चुअली मेरा एक और सीन क्या था पता है क्या, बिकॉज मेरा पासपोर्ट बनने के लिए टाइम लग गया. बिकॉज फॉर एवर माई नेम, मेरा पूरा नाम क्या पता, रोहित भारती. राइट, दैट्स व्हाट यू नो. मेरा एक्चुअल नाम पता है क्या, विविध भारती. नहीं, वो तो स्क्रीन है. मेरा एक्चुअल नेम इज रोहित सिंह. On passport I'm Rohit Singh. Bharti is my mom's surname. तो मेरा screen name always since my childhood has been Rohit Bharti. लेकिन जब पास, और उस समय मॉम का सरनेम अलाउ नहीं करते थे. आई थिंक ये रिसेंटली 5-6 साल पहले आया है ये, कि नाउ इट डजंट मैटर कि यू नो डैड का सरनेम हो या कोई भी सरनेम हो, व्हाटएवर. सो मेरे भाई को एफिडेविट डालना था. आई हैड टू चेंज माय सरनेम, सारे डॉक्यूमेंट्स पे टू बिकम रोहित सिंह. सडनली व्हेन आई चेंज पासवर्ड, मेरे दोस्त लोग बोल रहे क्या हो गया भाई, रोहित सिंह कौन है भाई. अरे मैं था पहले से, दिखाया नहीं कहा अभी. तो उसके चक्कर में, बट एनीवे, सो वो हुआ. आई केम टू दुबई. 4-5 महीने था काम, जो भी बोलो जैसा भी बोलो, हुआ. एंड देन आई वाज लाइक कि अभी आना है, अच्छे से आना है. फिर मैं वापस इंडिया गया. एंड मेरे को पता था कि यहाँ पर अपन अच्छी लाइफ जी सकते हैं, दुबई में अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अच्छा सा अपन ये कर सकते हैं.
And then again in a year's time I had figured out where to move. So when I went back ना 5-6 महीने तक they hadn't found my replacement in मिर्ची मुंबई. तो जब मैं गया ना मेरा डेस्क सब वैसे का वैसे ही. जब मैं गया लोग बोले छुट्टी पे गया तू छुट्टी पे. क्योंकि तो सेल्स वाले उनको पता नहीं ना प्रोग्रामिंग टीम के साथ उतना बात नहीं करते. कभी कभार 1-2 महीने में कभी कभार मुलाकात होती. तो दिखा नहीं किधर गया था. छुट्टी था मैं छुट्टी पे गया. उधर लोग को डरा के बोलता था मैं sabbatical. Company paid for my travel, so I had gone for my sabbatical. इतना हाँ इतना ही है मेरा. Crazy. So that happened and then Dubai. So now when we come to Dubai, मतलब your radio career started. रेडियो करियर मतलब मेरा 2010 में चालू हुआ था बट दुबई का रेडियो करियर 2012 में Yeah, चालू Dubai हुआ. career. हाँ And 2013 पर से. you left recently, right? हाँ आई क्विट लास्ट ईयर दिसंबर. So मतलब 10 years. हाँ 10 years in radio. Let's come to radio. Radio में how was it? Like how was Dubai radio? What difference was there? One of the best companies, one of the best places to work, like genres of companies to work. I think I feel radio is one of the best places to You work. were with which? So I've done like 2-3 companies. So Oh, I you've started. done So when I moved for Suno 1024, which That is was now the, Mirchi. नहीं, that was the second That one. was the second. पहले First Radio Spice. Spice. Okay. Second was Suno 1024, and then उसके बाद so now Suno 104 is Mirchi, but then Suno 1024 से I moved to Mirchi. Okay. Mirchi then changed to Kadak. That way. कड़क जो अभी हाँ है. हाँ कड़क जो अभी. So मेरा last जो था I was with Kadak FM in till December 2021. How was the content creation there? Like what were I mean obviously ads, हाँ. but उसके अलावा what all you would do and how was it? So- As a content writer. हाँ so what happens is how it works is बहुत ही सिंपल वर्क होता है रेडियो का. सेल्स वाले जो हैं वो जाते हैं ब्रीफ लेकर आते हैं क्लाइंट से कि क्या क्या मतलब आपको आप हम पे खर्चा करो, हम आपको ये रेट दे रहे हैं. तो सेल्स वालों का वो डिसाइड होता है. वो लोग ब्रीफ लेकर आते हैं, बोलते हैं रोहित ये प्रोडक्ट है उनका, जैसे कि लेट्स से कार का ये प्रोडक्ट है, ये लोग सेल कर रहे हैं कार की, तू क्या कर सकता है. आई कम अप विथ एड्स के आइडियाज कि अच्छा ये एड पे ये कर सकते हैं, शो पे अपन ये कर सकते हैं. शो पे जो कॉन्टेस्ट भी जाते हैं ना किस तरीके से, जैसे कि एक गाने के बीच में अभी आप गाना सुनना, इस गाने में 3 बार कितनी बार हॉन्ग बजेगा आप बताना, गाने के एंड में जो राइट आंसर आएगा. ये एक्चुअली अच्छा आइडिया दे दिया मैंने. ये तो बहुत अच्छा है. एक बार चोरी मत करना, पहले बता रहा हूँ मेरा आइडिया. तो समथिंग लाइक दैट. सो SMS करो वगैरह, जिसका भी राइट रहा ड्रॉ में जाएगा ऑल ऑफ दैट. तो वो सब कॉन्टेस्ट मैकेनिक्स भी बनाना अपना काम होता है. तो अपने को सिर्फ राइटिंग नहीं है, 3-4 चीजें. तो ये इन द बिगिनिंग था. पर 2015-2016 में क्या हुआ, डिजिटल का इतना बड़ा बूम आ गया कि पीपल लाइक आप फेसबुक के लिए भी कुछ बनाओ, इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ बनाओ, टिकटॉक के लिए भी कुछ बनाओ, यूट्यूब पोस्ट के लिए भी कुछ बनाओ. तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए आ गया. सो अब ऐसा हो गया कि अपन ऑलरेडी डिजिटल क्रिएटर, अपने को ऑलरेडी पसंद है, अब अपने को टीम मिल गई. तो मैं तो भाई मैं तो बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, डायलॉग दे रहा हूँ, कैरेक्टर्स बना रहा हूँ. तो उसमें भी मजा आया. ऑब्वियसली रेडियो स्टेशंस इन द बिगिनिंग वर नॉट इक्विप्ड विद द टीम्स, क्योंकि वो तो रेडियो स्टेशन है ना, डिजिटल स्टेशन थोड़ी ना, मतलब right. तो उसमें ऑब्वियसली यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर स्टिल डूइंग. आइडियाज तुम सोचते हो यहाँ पर है, बट प्रोड्यूस होते होते यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि नहीं है ना अपने पास वो. तो वो लर्निंग था. सो इट वाज फैंटास्टिक. एंड रेडियो में क्या होता है पता है क्या, इट्स लाइक यू डोंट फील लाइक यू आर वर्किंग, एंड इसीलिए यू एंड अप वर्किंग अ लॉट. समझ रहा तू. तो 10-11 बजा रहा है, सब लोग दोस्त हैं, चिल है, क्या स्क्रिप्ट है, हाँ 2-3 आइडिया देना, हाँ आइडिया दिया, लिख दिया, काम हो गया. फिर तो शाम का शो जिसका है वो आ रहा है, उसके साथ चिल कर रहे हैं, हाँ तेरे शो पे क्या कर रहे हैं, ये हो गया, टाइम देखकर 9 बज गए. Coming to your friends over there, हाँ. tell me people who you loved working with. कौन थे वो? What RJs were there? अभी कौन थे वो? Like if you have like fond memories कि मैं इसके साथ काम कर, like I enjoy or I didn't enjoy. There's no individual, like individual तो नहीं है ऐसा कोई. अगर मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बाकियों को बुरा लग जाएगा, तो मैं इंडिविजुअली नहीं बता सकता किसी एक का नाम. बट इन जनरल ऐसा नहीं है कि सारे आरजेस के साथ तुम्हारी दोस्ती हो या सारे सेल्स के साथ तुम्हारी दोस्ती हो, क्योंकि टाइमिंग का भी बहुत लफड़ा होता है. जैसे कि अभी जो मॉर्निंग शो वाले आते हैं वो 5:30 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं वो लोग. तो बाय 10, 11, 12 PM दे आर गॉन. और अपन 11 बजे आके एनर्जी क्या वावा क्या कर रहे, तू जा रही थक गया काम, मेरा डे खत्म है, जा तू. तो अपने को लगेगा कि क्या एटीट्यूड मार रहा है, मॉर्निंग शो तो स्टार नहीं, वो थक गया है, वो क्या करेगा, जाने दो उसको वैसा. सो एज सच देयर इज नो इंडिविजुअल, बट वहां पर तुम जेन्युइनली बहुत ही क्लीशे लगेगा कि बोलते हैं ना कंपनी इज अ फैमिली, बट मोस्ट रेडियो स्टेशंस द प्रोग्रामिंग टीम विल एंड अप बिकमिंग लाइक अ फैमिली, क्योंकि तुम काम ऐसा करते हो और तुम बाहर भी जाते हो. Even now you still have videos coming up with them. Always. मैं अभी भी मिलूंगा ना किसी से भी, कुछ ना कुछ आइडिया किया, चाहे डांसिंग हो, चाहे कॉमेडी स्केच हो, चाहे कुछ भी हो. Always and still in touch with everybody. Like मेरी शादी अभी 6 महीने हुई है, 6 महीने पहले हुई मेरी शादी. So obviously दुबई से लोग नहीं आ पाए, कोड वगैरह लफड़ा चला था. वहां पे मेरा एक्स स्टेशन जो है मिर्ची, मेरी जितनी प्रोग्रामिंग टीम, people who were in a group with, everybody was invited.
और I had left that company in 2012. So you're still close, you still talk, वो सब रहता है. And then most companies में again तुम इंडिविजुअली, मैं कॉर्पोरेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तुम इंडिविजुअली शायद उतना पर्सनली बात नहीं कर पाते, बट इन कंपनीज में बहुत पर्सनली बात होती है. घर पे क्या चल रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं, तू छुट्टी कब ले रहा है, छुट्टी उसमें पे आई कहाँ फील जाने वाला है. मेजरली एवरीवन हु इज देयर दे आर डूइंग पैशन वर्क. Yeah. मतलब दिल से वो आ रहा है. हाँ. ऐसा नहीं कि भाई सेल्स कर रहा है, हेलो हेलो हाँ, यू आर रियली लाइक गॉन. Yeah. बट यहाँ पे तो यू आर लाइक टॉकिंग, यू आर चिलिंग, इट्स Enjoying व्हाट यू it. लव. एवरीवन Yeah. इज डूइंग व्हाट दे लव. देख पैशन है और पैसन भी है. पैसन भी आता है हाथ में, ऐसी बात पैसन, नहीं. yes. पैसन भी है, दोनों भी है. क्यों बताओ? बिकॉज दुबई एज द फर्स्ट प्लेस व्हेन यू कम हियर, आई विल बी ऑनेस्ट, आई विल बी एज raw as possible. You come for the money and you come for the lifestyle, luxury of the like, क्या लाइफ है इधर. हाँ. यही सेम लेवल पे जो मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं काम कर रहा था एज अ राइटर, यही सेम अगर मैं मुंबई में रहूँ, इवन इफ आई एम अर्निंग द सेम थिंग, आई कुड बी ड्राइविंग अ BMW और ऑडी और अ मर्सिडीज, पर उधर रास्ता नहीं मिल रहा ना मेरे को. आई एम नॉट थ्रोइंग शेड एट माय कंट्री, एब्सोल्युटली लव माय कंट्री. मैं तो इंडिया जा रहा था, है ना, इसके पहले कोई बुरा कमेंट करे मैं बता दूं. बट द लग्जरी, पीपल मूव आउट फॉर द लग्जरी ऑफ इट. एंड ऑब्वियसली आई कैन अफोर्ड मेरे फैमिली का पूरा ध्यान देख सकता हूँ मैं, किसी को कुछ स्ट्रेस नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इनकम दैट आई एम एबल टू मेक हियर. बट कमिंग टू इनकम आल्सो आई थिंक नहीं, सैलरी तो नहीं बताऊंगा मेरा. नहीं, इतना क्लोज नहीं है. नहीं यार, सैलरी नहीं पूछ रहा. बट इफ यू सी people in the creative field in places apart from India, they earn better than in India, I feel. Yeah. Especially writers. Yeah. No, but so अच्छा देख, हाँ, ये मेरे को लास्ट 2-3 साल तक ऐसा लगता था. अभी रिसेंटली मैंने पता किया है, एक दो जो दोस्त लोग थे साथ में काम कर रहे थे, तो अभी जैसे कि वन ऑफ माय म्यूचुअल फ्रेंड्स वर्क्स फॉर द कपिल शर्मा शो. ही इज वन ऑफ द राइटर्स देयर. ठीक है, सेकंड या थर्ड राइटर है वहां उनका. तो उसने 3 साल में वहां पर घर ले लिया बॉम्बे में. Okay, मतलब that is Kapil Sharma. You understand? I'm saying if you are talented because of social media, okay. If you are talented because of social media, you will get work. And that's what's happened with यहाँ का जो मेरा दुबई का पेज है. मैं पहले कुछ भी करता था रैंडमली, ठीक है, कॉमेडी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट मेरे को बिजनेस एंगल नहीं था. बट एज माई वाइफ स्टार्टेड, महक ने जैसे उसको एक बिजनेस साइड दिया है, सडनली आई एम लुकिंग एट डूइंग क्लाइंट वर्क, लाइक एवरी मंथ 5 to 6 वीडियोज कर रहा हूँ मैं. यही सेम चीज मैं 2016 में भी कर रहा था, पर तभी कोई नहीं आया मेरे पास, क्योंकि वैसा नहीं था. लेकिन वो you are thinking from your creative angle. Yeah, so same thing in Bombay, in a place like India also, कि तुम you need to know the opportunities, कि कहाँ पर क्या हो रहा है, because big companies are pumping in money. यहाँ पर अपन एक अच्छा वीडियो बनाते हैं, अपने को we call it viral level, जब 100,000 या 200,000 हो जाए, तो वहाँ इंडिया में 100,000 200,000 ऐसे आ रहे हैं यार, ऐसे आ रहे हैं, because people are there. No, अपने पास यहाँ पर we have what 1 million people, the maximum that we can go to, like in the sense the people that stay here. But वहाँ पर the chances of being viral, truly viral, they go at that level. So that is like money बन रहा है वहाँ पर. Content creators are able to make money without doing a full time job. You heard, like, I think last year there was an entire they were talking about the economy of social media in India, which the amount which came up was really big. Oh, really? Like, मैंने नहीं पढ़ा. भयंकर था. That's the reason जब now you check this year's budget. I don't know, देख रहे हो कि नहीं? मैं But वो बहुत, I also don't watch, but economy वाला zero. They literally started taxing that economy. Like पहले streamline नहीं था. Like how in Dubai it's not at all streamlined. You don't have companies जो कमा रहा है वो उतना कमा रहा है. हाँ, और उधर pump हो रहा है, and then now when they came to know the amount, they are putting something. So coming back to the topic, Tidding. Tidding, I've heard how you started, how the word came, but I'm quite sure you started your content creation with your channel, personal one, Vivid Bharati. Yeah. या पहले Tidding आया था? नहीं, so I'll tell you what, एक और channel है. Okay. There's a channel that I started in 2013. In 2012 rather, I think मैं यहीं पर था. It was called Postries. Postrees. Postrees. हाँ, याद है मिनिमल बॉलीवुड पोस्टर्स का एक फैड आया था. मिनिमल बॉलीवुड पोस्टर्स, जहां पर अगर तुम्हें अंदाज अपना अपना दिखाना है तो यू जस्ट शोन, लाइक जैसे कि मैंने ही बनाया था पोस्टर, स्मॉल पार्ट ऑफ दैट, लाइक हैट, हाँ, बस वही, हाँ, टू द पॉइंट. हाँ, जैसे कि अगर आई रिमेंबर मैंने सोल्जर मूवी बॉबी देओल वाला जब दिखाना था, तो मैंने चश्मा नहीं, मैंने वो टेबल का जो हैंड रहता ना, जिसे वो काटता, मैंने वो बनाया था. वो सो उसका फैड आया था. सो मैंने ऐसी, मेरे को मजा था बनाने के लिए, और मैंने थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइन सीखा था, तो मैं पोस्टर्स बना बना के डालने लगा. एंड दैट स्टार्ट गेटिंग रिस्पॉन्स. ठीक है, उसके बाद आई स्टार्ट मेकिंग वीडियो मीम्स. आई रिमेंबर कॉलिंग इट कैप्शन बॉलीवुड. So it's like using a video song. अभी आजकल जो रील्स पे और टिकटॉक पे लोग कर रहे हैं,
यू यूज अ सॉन्ग बट उसपे तुम कैप्शन डालो कि किस सिचुएशन में वो गाना यूज हो सकता ओके है, गॉट इट, जो That- अभी नाउ व्हाट इज ट्रेंडिंग. वो कर रहा है. ये मैं 2013 में कर रहा था, ठीक है, 2013 में कर रहा था मैं. सो मैं तब कर रहा था ये, एंड दैट टाइम कॉपीराइट का इश्यूज उतना नहीं हुआ करता था. सो गाना दिख रहा है, अपने को कुछ उठाया, अपन ने बना के डाल दिया, एंड दैट स्टार्टेड डूइंग सो वेल. Where were you posting? Vimeo? नहीं, इट वाज यूट्यूब एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम उतना नहीं था, फेसबुक और नहीं. यूट्यूब था मेजरली. आल्सो देयर वाज वाइन्स. Vimeo, Vines. V-I-M-O? नहीं, Vimeo No, अलग है. V-I-N-E-S, right, हाँ. वाइन्स. Vines was that 6 main, सेकंड. बाद में बंद हो गया था. हाँ 6 सेकंड. अभी घूम फिर के सब लोग फिर से 6 हाँ, सेकंड 6 पे ही आ second में रहे आ हैं. गए. बट वाइन्स वाज 6 सेकंड, उस पे मैं अपलोड करता था. सो देयर इट स्टार्ट गेटिंग ट्रैक्शन ऑन फेसबुक, इट स्टार्ट गेटिंग ट्रैक्शन ट्विटर पे भी थोड़ा बहुत आने लगा. सो वो मैं करता था. दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ कि अच्छा बाहर जनता देखेगी और रिस्पॉन्स आएगा तो कैसा लगेगा. 2013-14. 2013-2014 हाँ, तभी मैंने चालू किया था. फिर वो बंद क्यों हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ, 2015-2016 के आसपास मैं खुद ही बोर होने लगा. वाज लाइक यार वही चीज कर रहा हूँ मैं. देन आई स्टार्टेड, उसी में कॉल्ड बॉलीवुड बीट्स, अनदर कैंपेन उसी के अंडर. वो क्या था, मैं देसी गाने लेता था, इंडियन अपने बॉलीवुड गाने लेता था, और उसके नीचे EDM ट्रैक्स लगाता था. जैसे कि नैनो में सपना का जहाँ पे ताथैया वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, श्रीदेवी और जितेंद्र डांस कर रहे हैं, बैकग्राउंड चल रहा है, ही शॉट मी डाउन बैंग बैंग माय बेबी शॉट मी डाउन. तो मैंने वो बनाता था मैं. अभी जो That was viral. हाँ, तो दिस इज 2014. That was yours? 2014-2015 I'm talking about. I don't know this very So well. I used to do that because I got bored from doing this, ठीक है. And I remember that point of time, TVF, AIB, I have messages from them on my Twitter saying कि you are our entertainment. Oh, wow. So TVF, I still have a message from Tanmay on Twitter where he had invited me in 2016. He had invited me कि to head social media of AIB in Mumbai. Obviously पर अपना दुबई का ये था ना. I told him यहाँ से करूँ क्या, like नहीं रे उधर रहना पड़ेगा. So It was a good decision, I guess. so all said and done, so वो मैंने पोस्टर्स चालू किया था. Also I was not confident. मेरा चेहरा was very this कि नहीं यार मेरा चेहरा स्क्रीन पे मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, ये वो, एंड मेरा दांत ऐसा है, एंड मेरा ये वैसा है, एंड ऑल ऑफ दैट. So like छोड़ो ना. So I should just make memes. It took me 6 years to start. ट्रेडिंग की वजह से विविड भारती चालू हुआ in a way, because in 2016 I started trading. ठीक है. 2016. Yeah, 2016 I started trading, and so 2010 से मैं कंटेंट कर रहा हूँ. Why did it stop? Why did you close that? Because you wanted to. कॉपीराइट इश्यूज आना शुरू हो गए तब तक. 2015-2016 में कॉपीराइट इश्यूज आने शुरू हो गए, स्लैश, एंड क्या था, आई कुडंट मोनेटाइज इट. Oh, and then your old content also must have got, na? दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम it's more- कि पुराने रैंडमली मेरे को इट सारे वाज लाइक styles एक हैं। जैसे वो लोग ने DMC वाला चालू किया वैसे एक हफ्ते के अंदर पुराने वीडियोस पे बैक टू बैक कॉपीराइट. और इंस्टाग्राम का ऐसा था कि अगर तुमको बैक टू बैक कॉपीराइट आ रहा है तो तुम्हारा कंटेंट होल्ड कर ले रहा था. Oh. देन आई एम लाइक छोड़ो यार क्या करना है. सो वो सब मैंने पोस्टेज उस टाइम पे अभी भी आई थिंक इट हैड सम 2 लाख पीपल और समथिंग. माय फेसबुक हैड दैट. अभी भी इफ यू ओपन अकाउंट वैसे का वैसे ही पड़ा है. 2 लाख का अकाउंट वैसे का वैसे ही पड़ा. कुछ नहीं कर रहा था मैं. That's the reason you like. सो देन आई वाज लाइक छोड़ो ना, अभी हो गया अपना मजे था, अपने किया जो भी है. देन आई वाज लाइक फिर जब ट्रेडिंग आया ना, सो वहां पे आई वाज इन अ वे फोर्स्ड टू पुट माय फेस देयर, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ वी आर इन एन एक्सपैट कंट्री, एवरीबॉडी इज वर्किंग. तुमको ऐसा अपने देश जैसा नहीं है कि अभी जिसके पास जॉब नहीं है वॉटर तो घर पे बैठा है चिल कर सकता है. यहाँ पर यू हैव टू हैव अ जॉब यार, अदरवाइज तुम्हारा वीजा तुम्हारा तुम कैसे सर्वाइव करोगे. इट इज डिफिकल्ट, genuinely it is difficult, at least अपने एज ग्रुप में, unless you are in uni or in school, then it's different. So I used to write, I used to like creating content. लोग को मैंने जो कैप्शन बॉलीवुड वगैरह जो मैंने पोस्टरीज के लिए किया था, पहले मैंने ट्रेडिंग पर डालना शुरू किया. मैंने देखा उस पर रेस्पॉन्स आ रहा है क्या, उस पर रेस्पॉन्स आने लगा. लोग कहना सा ओके, दे स्टार्टेड एंजॉइंग लोकल कंटेंट, क्योंकि सेम थिंग जो मैं बॉलीवुड में जनरली कर रहा था, आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग इट टू UAE सेंट्रिक जोक्स में करने लगा. But still, why weren't you not motivated to post on that? Which one? On Postries. Because I didn't want to put my face straight away, and I know it would get shot down. यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैं बिल्डअप कर रहा था क्योंकि मेरे को पता था ये चीज हिट है, ये चीज चल जाएगी, मुझे पता था. यहाँ पर मैं बिल्डअप कर रहा था टू सी whether I will eventually get something from this or not. Like your side gig. हाँ, कि can it become a Alter big ego. thing. हाँ, कि यहाँ पे लोग को हंसाने का मेरे को. Okay. अभी भी डिजिटल में इफ यू सी बहुत ही कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं who are doing direct comedy.
you know you yourself are a comedian. Oh, yeah, हाँ. बहुत तो बहुत ही कम है ऐसा जो डायरेक्ट कॉमेडी करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इट इज जेन्युइनली अ डिफिकल्ट टास्क टू कॉन्स्टेंटली कम विद कॉमेडी स्टफ, एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक पीपल लाफ. मेरा एक एम वो था. तो मैंने मीम्स वगैरह बनाने शुरू किए, बेसिक वो सब शुरू किया, स्टार्टेड सीइंग रिस्पांस कमिंग इन. मैं बोला चलो अच्छा. फिर एक बार मैंने गट्स करके लिखा, मैंने चलो अपन खुद शूट करते हैं, अपन खुद एक बनाते हैं. ठीक है, हमने बनाया ड्राइविंग टेस्ट इन दुबई. पहला एक वीडियो हमने बनाया. ठीक है, I think this was in Bhairavi. yeah, I first saw. video. हाँ. That is the funniest video. That Oh my video God. in 1 week, and I'm talking about 2017 or 2018, 2016 only, I think. In the first week, it had 1 million views. That It time, deserved. That time, and we were like, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हमको एक्सपेक्टेड नहीं था, हम क्या करें. एंड देन उसके बाद फिर कुछ लोग दुबई पुलिस को टैग करने लगे. आई एम लाइक ओके, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगा ऐसा कंटेंट. फिर हमने वो चेंज करके ना हमने किया ड्राइविंग टेस्ट इन गल्फ, क्योंकि हमने कहीं पे प्लेट वेट कुछ नहीं बताया, तो कोई लफड़ा नहीं था. सो इट वाज ओके, एंड देयर वाज नथिंग, कुछ गलत नहीं था ऐसे. बट फिर भी डर लगने लगता है, फट जाती है यार ऑब्वियसली ना. सो दैट हैपेंड एंड वी सॉ ओके देयर इज अ मार्केट. एंड देन ब्रांड्स सामने से बोलने लगे कि हमको जैसे तुमने बनाया था ऐसा कॉमेडी स्केच वैसा बना के दो. तो हमने शुरुआत में किया दिस एंड दैट, एंड देन उसके बाद फॉर अ व्हाइल आई इवन लेफ्ट माय जॉब. रेडियो. या छोड़ दिया मैंने. For 1 year I focused on trading. So let me tell you, for 1 year I completely focused on trading. You left. I left my job. I put all my savings into trading. But क्या होता है, when just a creative person heads a company, it will flop. That's what happened I with me. understand. There was no business. Client के पास जाता था, client को होता था ये idea. Client बोला नहीं, इधर मेरा brand है, इधर brand. मैं चल निकल. ठीक है, मेरा पेज है, निकल चल निकल. जब 3-4 महीने बाद मेरा सेविंग्स खत्म होने लगा, बोला हाँ डालते ना अपन, 5 बार डालते ना अपन, टेंशन नहीं डालते अब. क्लाइंट बोला अभी तू निकल. तो वो लफड़ा हुआ, मैं बोला चलेगा कोई बात नहीं. पर अपना लक ऐसा है कि 5-6 साल से रेडियो में था, जनता को पता था कि मैं रेडियो में हूँ. सो फॉर मी टू गो बैक टू रेडियो वाज लाइक दरवाजा खोल नहीं बोलो, कोई टेंशन नहीं की, अपना ही बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड रेडियो अपन ने किया है. सो सुनो से देन उसके बाद आई वेंट टू मिर्ची, एंड मिर्ची अबू धाबी वाला. एंड बिकॉज आई वाज एक्स मिर्ची एनीवे, सो उनको मेरे को ट्रेन ऑन करने की जरूरत नहीं थी. आई नो द ब्रांड गाइडलाइंस क्या है वो, सो फॉर देम इट वाज सुपर इजी एज वेल, एंड आई नो दुबई इन एंड आउट. So it was a perfect fit also for me to go back to them. So back in the sense only the brand, not the city. City तो was Bombay. हाँ Bombay था. तो Bombay I didn't go back. I wanted to continue in Dubai. So I was like चलो trading मैंने कोशिश किया, नहीं हुआ. Start working फिर से चल रहा. जब एक थोड़ा सा सेटलमेंट आया, पैसा वैसा, फिर से थोड़ा सेविंग वाला, फिर से कुछ बनाते हैं. कोशिश एक और बार तो करनी चाहिए. So then I started making again. इस बार थोड़ा सा आराम से, कभी इधर डाल दिया ये वो. फिर ऐसा करने लगा कि क्लाइंट आ रहा है तो बनाएंगे, वरना छोड़ो वैसा. फिर क्लाइंट आने लगा, बनाने लगे. देन उसी के बीच में आया गब्बर सिंह का वीडियो आया, रासल खेमा गब्बर. दैट बिकेम लाइक मैसिव हिट. बिकॉज हमने जेन्युइनली रासल खेमा गए, हमने वो पहाड़ ढूंढा, हमने वो सब बनाया, वो सब किया. So that was epic. That got a good response, and I was like चलो ठीक है, ये अपन सेफ रखेंगे, जैसे जैसा आएगा वैसे वैसे अपन करते जाएंगे. And then what happened was I continued with radio, and जब रेडियो, I remember मैंने बताया था कि डिजिटल भी रेडियो में धीरे धीरे आने लगा. So क्या हुआ, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा था, क्योंकि मुझे मेरे के लिए भी कुछ बनाना था, मुझे ट्रेडिंग के लिए भी कुछ बनाना था, और यहाँ पर इना पे टारगेट आ गया और मैं अकेले था. सो ऐसा था कि ट्रेडिंग वाज छोड़ो, नहीं हो गया, क्योंकि मैं पूरा इस पे फोकस कर रहा था. एंड देन व्हेन आई स्टार्ट हैंडलिंग डिजिटल, देयर वाज नो अलग से क्या बोलते हैं ना, मोटिवेशन नहीं था. लाइक या तो रेम्यूनरेशन अलग हो उसका, या तो मोटिवेशन इन अ वे एक टीम दी जाए, वैसा नहीं था. ऐसा हो गया था कि अपन खुद ही कर रहे हैं. बिकॉज उसमें भी ऐसा रेडियो की गलती नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव अ टीम पर से. बिकॉज तुम्हें पैशन है तो तुम टीम के साथ मिलकर बना रहे हो, वो सिचुएशन हो गया था. सो वो सब में मजा आया, ऑल ऑफ दैट हुआ. बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम तुम कितना ही पुश कर पाओगे, या तो तुम्हें टीम मिलनी चाहिए, या तो तुमको इनफ पैसा मिलना चाहिए, समथिंग टू मोटिवेट ना. बिकॉज वीडियोस को रिस्पॉन्सेस तो मिल ही रहते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि फॉर मी अपन इतना टाइप का कंटेंट किया है, इतना ये किया है, तो किसी एक वीडियो को 1 मिलियन आ गया तो अपन नाचेंगे नहीं. ठीक है यार, आ गया, ठीक है, अभी होता है, लेकिन बट किसी और के लिए जिनके लोग ऐसा नहीं है, अरे तो पागल हो गया अपन, चल और करते हैं. There's a team to motivate you, and हाँ वैसा. हाँ तो एंड नहीं, more than motivate, work also with you. अपन स्क्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर कोई एक्टिंग करे, कोई डायरेक्शन संभाले, कोई एडिटिंग संभाले. Imagine the same setup. It's not Raina, it's just Anil logo, and then कैमरा के पीछे कोई बैठा नहीं है, सब कुछ अपने को करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा कैमरा बंद हो जाएगा, don't know only. And then तू कब एडिट करेगा, कितना ये होगा, and then खत्म. That is how it happens. So then
अराउंड 2019 वगैरह मैं एक दोस्त की शादी में गया था जयपुर. दैट इज वेयर आई स्पॉटेड दिस ब्यूटीफुल गर्ल. मैं बोला भाई ये तो बनता है, ये तो बने, ये लड़की तो फुल I just बॉलीवुड. love everywhere whenever you put this beautiful girl's name. It has a nice like ढोल. वो And then तेरे को पता मेरे दिमाग में जब मैं फर्स्ट टाइम देखा ना, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला ना उसको, स्लो मोशन बाबा ऐसा भाग रही थी वो, बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम फुल पैगाम लाया सावन एकदम. बोलते ना वो जाहिद खान बोलता है वायलिन बजेंगे, अरे बाबा चिड़िया उड़ रही है मेरे सामने. where did you all meet? So this was a wedding, okay? So obviously wedding, she's all decked up and stuff already because wedding, and she's wearing nice yellow color का उसने क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल दे तू पीछे बैठे, क्या बोलते हैं? अनारकली नहीं. घाघरा चोली. हाँ तो हम लोग जाने भी नहीं, तो आई वॉज नॉट सपोज टू गो टू दैट वेडिंग. Okay. So I was not supposed to go to that wedding. वो तो बाद में पता चला. So एकदम येलो घाघरा चोली में ऐसा भाग रही, और मैं राजपाल यादव, मने भी घाघरा चोली जोयो, मने भी चुप चुप के मैं राजपाल यादव बन गया. तो मैं बोला ये तो आउट ऑफ लीग है यार, ये तो आउट ऑफ लीग है, चांस ही नहीं है. एंड ऊपर से Wait, this is in Dubai. नहीं जोधपुर में दोस्त की शादी, म्यूचुअल फ्रेंड जिसको मैं 2 बार मिला था, फिर 2 बार मिला था, उसने इनवाइट किया मेरे को, मैं जाने भी नहीं वाला था पर मैं गया. सो वो दोस्त भी बहुत लकी रहा मेरे लिए. तो एनीवे सो आ रही थी सामने से, मैं बोला ये तो सीन है. फिर मैं बोला आउट ऑफ लीग है, कोई टेंशन नहीं है. बोला चलो ठीक है, 2-3 दिन तक जब तक है तब तक एक डेट, एक अपना एक बोलता ना वन साइड लवर अपन बनेंगे, देखेंगे जिधर खा रही अपन उसी प्लेट में खाएंगे. फुल रहना तेरे दिल में वाला सीन है क्या, रीना फ्रॉम दिल्ली वाला. हाँ वही सेम कप मेरे साथ वो सिचुएशन था. तो एंड देन सो वो हुआ. बट जब मैं उसको मिला दूसरे दिन या वाटर, जब मैं उसको मिला तो उसको पता चल गया था मैं थोड़ा उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा हूँ महक पे. एंड देन महक को मैंने थोड़ा बात करने की कोशिश की. एंड वो यूजुअली शी हैज दिस ट्रिक जो उसने मुझे बताया कि वो लोग को जानबूझ के ऐसे बोलती है, मतलब ऐसी मूवीज बोलती है कि उसके इंटरेस्ट वगैरह क्या है, तो ऐसी जानबूझ के पुरानी मूवीज या साउथ इंडियन डब मूवीज बोलती है कि जिसको लोग सुन के बोले यार ये क्या लड़की है, तो सिर्फ ऊपर से अच्छा अंदर क्या कुछ नहीं है. मतलब ऐसा होता है ना. इफ आई एम सेइंग यार मैं तो गुंडा देखता हूँ, मेरा फेवरेट मूवी गुंडा है, या फिर मुझे देशद्रोही बहुत पसंद है, टू मूव अवे. भाई जा तू यार. तो उसने मेरे को बोला, तो फिर उसने मेरे को बोला कि ना मेरे को, देन शी इज लाइक मेरे को अपरिचित पसंद है. आई वाज लाइक, मैंने बोला कुंभी पाका मंद कूपम कृमि भोजनम, मेरे को पूरा डायलॉग पता है अपरिचित का. मैं खुद अम्बी अपरिचित रेमो तीनों मेरे अंदर. मैं बोला कौन सा बनता है तेरे को, तू बता. देन शी आल्सो, देन उसको भी लगा कि ठीक है चलो, तो अपन थोड़ा बात बीत किए थोड़ा सा. देन उसने उस शादी में उस मेरे दोस्त का जो एंकर था, जो रिसेप्शन होस्ट करने वाला था या संगीत होस्ट करने वाला था, वो नहीं आया. तो उसने फॉर वॉट एवर रीजन नहीं आ पाया, फ्लाइट वाइट मिस हो गई. 1 घंटे या 2 घंटे पहले, बिफोर नहीं 3 घंटे पहले बिफोर द संगीत मेरे को बोलता रोहित तू होस्ट कर ले प्लीज तू कर ले. वाला चल कोई बात नहीं करते. अपन उधर किया, उधर अपना पावर दिखा, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा ये, थोड़ा सा देख रहा इम्प्रेस हो रही कि नहीं हो रही है ना. ये अपना टाइम है अभी, तूने किया अपना लुक अपना स्मार्ट बोल के, अभी मेरा टाइम ये मेरा स्ट्रेंथ. सो उधर किया. एंड देन उसके बाद आई वाज लाइक कि अब जो भी है, फिर जब लास्ट डे आया तो आई वाज लाइक कि अभी तो खत्म है, अभी मेरे को पता है. Then how you came to Dubai? Like you अलग था उसका दुबई से. उसका दुबई कोई कनेक्शन नहीं था. फिर उसके बाद हम लोग व्हाटएवर अलग हुए. वो अपने घर पे गई, मैं अपने घर, हम दोनों बॉम्बे से, लेकिन फिर भी फोन पे बात होती थी, ये वो होता था वगैरह. एंड देन फिर अपन ने पीछा नहीं छोड़ा, अपन टारगेट पे रहे वाला बने, कुछ तो बने. फिर पूरा 2019 बात किया वगैरह. 2020 में इसको जॉब ऑफर आया, किधर से, दुबई से. इसका कनेक्शन क्या हो गया, 2026 को जॉब आया दुबई से. मेरा लक क्या हो गया, बोलना नहीं चाहिए वैसा, ये दुनिया भर के लिए कोविड वाज लाइक अ बिग प्रॉब्लम. मेरे लिए कोविड वाज लाइक, अरे भाई साहब मिरेकल था मेरे लिए. क्यों, क्या हुआ, इसके ऑप्शन बंद हो गए. क्या होता है, तुम सुपरमार्केट में जाते हो, चावल एक ही कंपनी का है तो तुमको खाना पड़ेगा ना, तुमको चावल तो पसंद है. तो वो सीन हो गया. Okay, then she came to Dubai. तो दुबई आई. एंड देन बिफोर शी स्टार्टेड, एज शी स्टार्टेड वर्किंग, कोविड आ गया. एंड देन शी जस्ट न्यू मी. शी वाज, जब उससे बात करें तो पूछ लेना ना, मेरा टाइम है. अभी इतना इंटरेस्टिंग है, I don't want to connect everything. शी वाज वर्किंग फॉर अ कॉन्ग्लोमरेट, लाइक उसके अंदर ढेर सारी कंपनीज हैं.
तो वैसे शी वाज वर्किंग इन मार्केटिंग ओनली कर रही थी वो, बिजनेस डेवलपमेंट में Okay. कर रही थी वो. why I asked, I thought she got a job in radio. नहीं 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 And नहीं. I She- thought y'all met there. नहीं and then नहीं, she's कुछ हुआ. far away from radio. Okay. She's far away, as far as possible from radio. She is. Because my story makes more sense because now she's full handling tidding and all. So it makes more sense when if she was in No, radio it's and no. all. I'll Not tell you like what. this. Because she's so she is handling tidding purely because वो digital marketing करके आई. You know from where? From London. Yes. Have you It's a ever good thing. have you ever been to London, my friend? Yes. She studied in London. जब वो मिली थी She's from London. लंदन Okay. जब वो आई थी तब मैं उसको कुछ कुछ होता वाला किया. ओम जय जगदीश का. बेस्ट पार्ट उसके डैड पंडित. मैं अरे बाप रे, ऐसा पोपट पे पोपट मेरा क्या बताऊं. Oh, man. तो सो एनीवे शी गॉट अ जॉब हियर वगैरह. अपन मिले फिर एंड देन कोविड आ गया. फिर और टाइम स्पेंड किया और बातें बातें हुई और फिर दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम आया. Okay. फिर सितंबर में उसके मॉम डैड यहाँ पर आए. मॉम डैड यहाँ पर आए, मिले, बोले कि हाँ ठीक है, वेरी गुड, कुछ किया जा सकता है लड़के का टाइप्स. ठीक है, तो वहां से परमिशन मिला एंड देन 1-2 महीने बाद हमारा फिर रोका हुआ एंड देन उसके बाद बहुत आगे भाग रहे हम लोग. हाँ. Now coming to the part when she comes into the picture, because I know that you will now fully promote her because I mean it's evident why Tedding is right now done so well. Purely because she In- started handling Yeah, it. in the last 6 months. Yes. You might say because of marriage and all that, but I'm quite sure. उसके पहले पुश कर रही थी वो. She said, एक तो कोविड के टाइम पर क्या हुआ, everybody started consuming a lot more content. So Yeah. कोविड के टाइम पर मेरा विविड भारती started growing because I started making Bollywood roast में बनाने लगा, movie reviews करने लगा, started doing reaction videos and meme reaction, वो सब करने लगा back to back. Were you sending these videos to her? Were you These waiting for- reaction videos? Yeah. Yeah, obviously I used to send it to her. इसको मैं स्क्रिप्ट सुनाता था कि मैं जो करने वाला And what because do you she- think? What do you think was her reaction? Don't look at her. तो उसको इम्प्रेस. द थिंग इज वो अर्चना पूरन सिंह की एग्जैक्ट ऑपोजिट है. उसको हंसाना इज अ डिफिकल्ट टास्क. Yeah, तो मेरा सेंस ऑफ it ह्यूमर comes जो out. भी इम्प्रूव हुआ है भाई साहब, क्योंकि हंसने नहीं मजा है, अलग जोक चेंज ऐसा. पहला ड्राफ्ट तो कभी अप्रूव नहीं होता. Yeah, वो हो गया. So because I started creating such content like that, so she was like, why don't you also start doing for trading? अभी time है. I started creating content for trading as well. Then she says, तू सिर्फ कॉमेडी कर रहा है, लाइफस्टाइल क्यों नहीं कर रहा है? लाइफस्टाइल में भी करना, डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एक्सपेरिमेंट ऑल ऑफ दैट. मैं बोला हाँ करने में क्या, वैसे भी इन अ वे नॉट लाइक अ डेड पेज बट इट वाजंट लाइक अ एक्सट्रीमली एक्टिव पेज. तो बोला हाँ ठीक है करता हूँ. Started doing that, started doing well. Then she started suggesting, but she was still working for the company that she was. Then she started suggesting और ideas कि ठीक है अपन और क्या कर सकते हैं. how we have to shift our focus to TikTok purely because TikTok का potential reach is 1 million every time you post. Yeah. क्योंकि उनका एल्गोरिथम इज कम्प्लीटली डिफरेंट. That time के बारे में 2020 और हाँ नहीं अभी भी उनका एल्गोरिथम इज वेरी डिफरेंट. but it's very tough compared to Instagram. बट इफ द कंटेंट इज गुड it pushes. बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंड. हमने हमारा जो पुराना गब्बर सिंह ये सब जो था तब तो टिकटॉक था नहीं, हमने निकाला, हमने अपलोड किया यहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं एक हफ्ते के अंदर हमारा पेज 10,000 हो गया, दूसरे wow. हफ्ते 15,000 हो गया. इन अ मंथ्स टाइम वी आर टचिंग लाइक 25K एंड वी लाइक ओ माय गॉड. ये तो और ये पुराना कंटेंट है सब, सिर्फ रिहाश कर रहा हूं मैं. सो शी इज लाइक बिकॉज टिकटॉक का वही है, तुम अगर तुम्हारा कंटेंट इज गुड दे विल पुश इट आउट. उनका एल्गोरिथम इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो शी डज दिस R&D वेयर regularly she reads up on all of this. And हमारा एक direct एक relationship manager है in Bangalore who works for Wow. Meta. Oh. तो वैसा तो she does a lot of that. So strategy वगैरह उसका पूरा डिपार्टमेंट है. So उसकी वजह से we started focusing full Nah, fledged this on- strategy and I'll talk with her. I want to know right now, if I'm not wrong, you're full time now a content creator. Yes. How and why did you make this decision? Because you were Huh. writing So content what happened and- was because she was in Dubai and I had to go to work in Abu Dhabi because मेरा company was in Office Abu was Dhabi. ठीक है. So I used to do up and down every day. That is from मैं Every day? हाँ Dubai to Abu Dhabi I used to do every day. Every Oh day. my God. बोले प्यार अरे यार स्लो मोशन पैगाम लाया सब, इतना तो बने, इतना तो Done, चलता हाँ, है. done. So I used to do up and down. So I did that maybe for a year or so. फिर उसके बाद जब शादी की बात आ रही थी, so like अब शादी के टाइम पे जब एक बार वी आर स्टार्टिंग आवर लाइफ तब इतना नहीं कर सकते बिकॉज व्हेन आर वी स्पेंडिंग टाइम. Right. क्योंकि आई एम गोइंग इन द मॉर्निंग 8, आई एम कमिंग इन द इवनिंग एट 8 एंड आई एम टायर्ड ऑल द टाइम. तो किधर घूमने जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब नहीं हो रहा था. एंड सो लाइक ठीक है इट्स टाइम इधर वी डू अबू धाबी और वी डू दुबई. बट शी वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर अपन दुबई में रहेंगे. ठीक है बिकॉज उसका इन अ वे काम वाज दुबई ओरिएंटेड एज वेल. आई वाज लाइक ठीक है चलो अपन ये करते हैं. ठीक है.
So when I was moving to Dubai, before moving to Dubai, I was in talks with other companies as well for other jobs too. But by that time, टेडिंग ने एक हल्का सा टेस्ट ऑफ सक्सेस मिल गया था टेडिंग को अराउंड समवेयर इन नवंबर दिसंबर, जब उसने बताया था कुछ कुछ करते हैं अपन, ठीक है, लास्ट ईयर 2021, हाँ कुछ मिल गया था टिकटॉक की वजह से, एज आई सेड हाउ एक महीने में सडनली वी मेड 25,000. When we got that, we're like, okay. And then we had brands started approaching, like good 3-4 brands started approaching. So like, maybe we can take a leap of faith again. तो हमने ये like when we came back from, हमारा शादी मार्च में हुआ, तो जैन फेब में मैं फुल फ्लेश ट्रेडिंग पे काम करने लग गया था तब तक. Started getting clients, started going talking to them, started bringing in business थोड़ा बहुत वगैरह. पर बिजनेस तब भी मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा था. So 2 महीने में छोटा छोटा काम किया, मतलब ऐसा काम किया कि मतलब अपना घर चल पाए, वैसा काम किया. After we got married, Mehak started handling trading full-fledged. So Mehak was obviously working in the previous company. She left that company. She's also a life coach. And she was doing that as well. Wow. But then she took over trading full-fledged purely because the amount of business जो उसने देखा कि potential कितना है इसका. तो जब वो अपना काम कर रही थी, तो उसने थोड़ा बहुत trading का भी देख ही रही थी वो. पर ऐसा होने लगा कि हमारा काम इस level से बढ़ने लगा that मैं तो I had to already quit my job. I had already started focusing on, but एक person से नहीं हो रहा था वो. As you said ना, अगर ये अपन पॉडकास्ट सिर्फ तेरे चैनल के लिए करते कैसा होता, उधर कौन बैठा है, कौन एडिट करेगा, नहीं होता. मेंटल हेल्थ वुड बी अ प्रॉब्लम. आएगा तेरे अगले एपिसोड में वो लेकर आएंगे मेंटल हेल्थ के बारे में. So she started taking care of the business side of it and strategy side of it. Not only business, strategy बहुत जरूरी है. अपने पास 4, 5, 10 आइडिया रेडी है. अभी तू बोल, मतलब मैं ऐसे कुछ भी बोलो, अपन 4 आइडिया ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, कंटेंट बेस्ड. बट देन कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, क्या साउंड यूज करना है, कहाँ पे पोस्ट करना है, कैन वी इन्वॉल्व अ क्लाइंट, वो सब शी डज इट. सो आफ्टर शी स्टार्टेड डूइंग दैट इन द लास्ट 6 months, टच वुड, हमारा बिजनेस चल पड़ा है. सो इट्स लाइक दैट इज बिकम लाइक नाउ शी इज हैंडलिंग फुल टाइम द बिजनेस साइड ऑफ इट, द स्ट्रेटजी साइड ऑफ इट. एंड ऐसा नहीं कि वो सब कर रही है, शी इज ऑल्सो लाइक, जब मेरा शूट जितना भी रहता है मेजरली, अगर छोटा मोटा शूट है तो वो भी डीओपी भी वही है. दैट वे ऑब्वियसली. तो बिकॉज इन द बिगनिंग सिर्फ हम ही दो हैं, पर जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं वैसे वैसे गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड एंड ऑल ऑफ दैट, तो सब हो रहा है. So that way, trading is doing full-fledged what it is doing currently. I am very curious to know. You took this decision to be a full-time, like stop everything, do trading, just right next to your wedding time. हाँ. I want to know the true fact. दिल के अंदर का वो छुपा हुआ डर. How was it? Like, so tell me the, like, obviously I can understand because somewhere I feel my story is very much related to you. I've also fallen down how you've fallen. I know how it feels for a content creator. जब he wants to do it, he knows he can do it. And then you fall, and I know how tough it is. That second is very tough. I mean, now it's fun. Now कि भाई अच्छा हुआ हम लोग ने वो risk लिया. But उस समय पर, but that second time, oh my god, I know, I understand. I want to know that. So what happens? हाँ देख, अपन क्या है ना, this I and Mehak discuss this a lot. I come from, मेरा base है ना survival है. I come from survival. In the sense, anything that I do, I have to make sure घर पे 3 टाइम का खाना होना चाहिए. मेरा I come from that angle. So मेरे लिए ये बहुत बड़ा रिस्क था. बट क्या था ना, इसके पहले मैंने अकेले रिस्क लिया था, तो जो भी था मेरा डर था. इस बार क्या था ना, इसका फेथ मेरे में था. सो जब मैं रिस्क ले रहा हूँ, शी वॉज देयर टू होल्ड मी. मेरे को ऐसा ये नहीं था कि मैं, अगर मैंने गलती किया, आई वुड हैव समबडी टू टेल मी नो यू ट्राइड, नो यू. लास्ट टाइम जब मैंने गलती किया, मैंने कोसा अपने आप को कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, गलत था, ये था, वो था. शी इज लाइक, इस बार गलती की गुंजाइश ही नहीं रखेंगे ना. लास्ट टाइम जो गलती की थी, लर्न फ्रॉम देयर एंड लेट्स मेक अ बेटर प्लान, एंड दिस टाइम आई एम देयर विथ यू. सो उसका मेरे को फेथ मिला. एंड देन उसकी वजह से वी स्टार्टेड, like, you know, and then we started getting like whatever business वगैरह, and then we started doing well wherever we are. I'm not saying we didn't struggle, we did struggle. Obviously. But instead of a year-long struggle period, हमारा struggle period was probably for 2 or 3 months. Because Touchwood trading का नाम था, हम 2016-2017 से कंटेंट बना रहे हैं, सो किसी को प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ ट्रेडिंग सुना तो है. एंड देन उसके बाद क्या हुआ, वी हैड लाइक खलीज टाइम्स कवर अस, वी हैड लाइक सेवरल अदर प्रिंट मीडिया, उन लोगों ने हमारे आर्टिकल्स वगैरह डाल दिए, बिकॉज वी स्टार्टेड गोइंग वायरल. ऑब्वियसली उसका रीजन भी महक ही है, यू नो, बिकॉज शी डज द स्ट्रेटजी एंड आई डू द कंटेंट, दोनों साथ में कंबाइंड है. बट वो सर्वाइवल का डर था मेरे अंदर. पर इस बार ऐसा था कि somebody had faith in me and somebody was supporting me. Faith in me can also be scary because इस बार तुम 2 लोग का ख्याल रख रहे हो. So if you fail, you're failing for 2 people. And you're feeling big time. Yeah, big time. Yeah, that is where mental health comes. So that is where उसका वो support मेरे लिए बहुत जरूरी था. But this time I always had a plan B. I always was in talks with something or someone कि मैं constant करता रहूँगा, कुछ ना कुछ करता रहूँगा. घर पे किसी ना किसी हिसाब से घर चलता रहेगा. वो सिचुएशन थी.
Yeah, so whatever, wherever we are, whatever we are, हमको वो फिर से leap of faith लेना पड़ा, and because of that faith, अभी अपन इधर बैठे हैं. That's right. I think I have like 100 more questions, but I'll keep it for podcast too. But before we end, I mean, why I want to ask you this question is because I really connect chords. I mean, your story is different, my story, but a lot of aspects happen. We our story match, wherein we became content creators and all that. But I want to know like something for people who will hear this this podcast for becoming content creators. I want to know things that you've learned from this journey. Right now, if I have to say, Tiding is doing well and it's going to surely do well because we are also not in India, we're in Dubai where the space is still on. Yeah. Right now, Tiding, I'm quite sure, is going to be the forefront, the forerunners when that actual wave of actual social media hits Dubai. Then I'm quite sure Tiding will be there. Obviously. I mean, Tiding is the name. There are like Ginchun ke there'll be Love in Dubai, there is Galbus, and then there is Tiding. Then there is Reinhard also. Then there is the Anil Lobo. That I'm saying page. I'm not saying. The वो भी यार, THE, the. मैं individuals नहीं बोल रहा हूँ. I'm saying page. I'm saying page. वो तो है. फिर there is like, I mean, individuals are there. But when it comes to like a page, when it comes to like some creators like us who want to be like featured, अरे Tiding में नाम हो गया viral. You know that type of thing I'm saying. So I know that there is a lot of things that are going to come across, and you're going to come at that stage. But I want to know, and I want you to tell people also who are going to become creators in futures, what are things that you learned that, like how in this interview you just told the good parts, you've not told the actual thing. You just told a summary जहाँ पे सब अच्छा है, लेकिन 365 days का 2 दिन बोला होगा, और remaining days you've not told. Obviously, वो I think हर job में होता है वैसा. But in create, I really feel creative world is much more different. Yeah. Because यहाँ पे बहुत ही, you know, you have to really keep this thing motivated to move. And keep it on all the time. On all the time. You might have a real bad instance, but then coming on camera or whatever, you have to still have to do it, yeah. That's the thing. So I want to know quick tips for content creators, especially what are things that you've learned that I don't think so nobody will talk about. What are things that you've learned? See, like for me, what I've learned is numbers is as a content creator, I really feel that numbers should not be your driving factor. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई you are making content because you're getting 1 million, and when you get those 1000 and 2000 जब it's not pushing, you stop, you say नहीं यार. You should not be motivated. That's my thing. Because अभी, I mean, if you see the numbers, they will say अरे हाँ अच्छा numbers है, लेकिन I have been doing it for 12 years and मेरे को 10-20 ही आ रहे थे, अभी जाके आ रहा है. So that was never my driving force. That was not कि I want to do that. Yeah. I did it just purely because I love it and I'm doing that. Yeah. So for me that is the learning. कि I don't think so I would want numbers to ever drive me because I hate maths बचपन से, and I really don't like it. कहीं पे भी numbers I don't like. So numbers is not what I run. That is what I would learn, and that is what I would tell people कि if you are in social media, never think about numbers, because आज हो तुम, कल तो 100% नहीं हो, क्योंकि कल कोई और आने वाला है, and that is fact. That is fact. Except unless you're Tanmay Bhatt, which you just somehow keep coming. I think he's the. That वो भी नहीं. No, other than इंडिया में अगर देखा है, other than तन्मय, अभी तो एक तो मुंबई में now एक certain set of creators चालू हो रहे हैं, if you see. And every year new come. हाँ, नए faces आते रहते हैं, and that I agree that will happen. As a content creator, पहले तो if you already are, then you always have to reinvent yourself. अगर तुम नोकिया ने मना किया था कि नहीं हम तो हम ही हैं, क्या हो गया? नोकिया वो लोग ने 3-4 बार रिलॉन्च करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ, आज बंद हो गया. हाँ, वैसे ही लफड़ा हो गया. ब्लैकबेरी बीबीएम नहीं होगा, बीबीएम ये होगा, बीबीएम होगा, व्हाट्सएप आया, खा लिया उनको. you have to change, you have to. बीबीएम इमेजिन अगर उस समय व्हाट्सएप और एंड्रॉइड पे आ गया रहता, व्हाट्सएप अब तक मतलब इन द सेंस एंड्रॉइड और आईफोन पे आ गया रहता, तो व्हाट्सएप का मार्केट था ही नहीं ना. फिर बीबीएम जब वो लोग ने मैसेंजर उस समय चालू किया था कि तुम इस पे डिजिटल पे डायरेक्टली बात कर सकते हो, चेक्स कर सकते हो, पैसे नहीं लगेंगे, चैट होगा. सो एनीवे, सो एज अ कंटेंट क्रिएटर यू कॉन्स्टेंटली हैव टू रीइन्वेंट. एक वो है अगर तुम ऑलरेडी कर रहे हो तो. बट इफ यू आर स्टार्टिंग एंड इफ यू आर डूइंग दैट, आई एज क्लीशेड एज दिस साउंड्स, यू डू व्हाट यू लाइक. बिकॉज जो तुमको नेचुरली निकल के आएगा ना चीज, वो कहीं से नहीं, वो कहीं से कुछ भी पॉसिबल नहीं है. जो तुमको नेचुरली आना चाहिए. आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल. मैं बहुत कुछ ना कुछ करने की कोशिश किया हूँ बॉलीवुड रिलेटेड. जैसे कि मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद, लाइक इन एंड आउट. इस एक पॉडकास्ट में मैंने पता नहीं 5 वीक का दिया रहेगा, बिकॉज मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है. बट आई नेवर इन द सेंस आई नेवर वेंट इनटू रिव्यूज एंड स्टफ. अभी मैं फिर भी कर रहा हूँ मेरे तरीके से, अभी चालू किया मैंने फिर से, ट्राइंग टू रीइन्वेंट दैट सेम थिंग, बट आई नेवर वेंट बिकॉज मेरा फोर्टे नहीं था वो.
मे बी रोस्टिंग आई ट्राइड दैट, वो चला बट मैं खुद बोर हो गया. वो कहां पर आता है मेरे अंदर, वो फिर री इन्वेंशन का आता है कि अभी नया क्या करेगा तू, तूने 20 रोस्टिंग वीडियोस बना लिए, अब क्या. You know what I'm saying? So but you stick to the thing that you really feel like doing, that you really love doing. Because जो इतना naturally आता है ना वो चीज करने के लिए, then numbers कितने भी आ रहे हो तुमको फर्क नहीं पड़ता, because you're loving what you're doing. जैसे कि अभी मेरा जो पेज है, मेरे को मेरे पेज पे सिर्फ कॉमेडी पहले करने का था, पर रैंडमली बीच में मेरे को डांस करने का मन किया, मैंने 2-3 डांस डाल दिए. that was also good. हाँ, मैंने वो डाल दिए. अब गुड हो ना हो मेरे को डालने, मेरा पेज है भाई, मेरा पेज है. दिस इज व्हाई आई लाइक द बिगर क्रिएटर्स जो अभी पहुंच रहे हैं. लाइक आई फील वन ऑफ द पर्संस इज कुशा ने जो ही रीइन्वेंट किया अपने आप को. आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक तुमको लगता है 3-4 महीने बाद तुम फिर से ये हो जाते हो, अरे यार फिर से वही कर रही है, वही दिल्ली आंटी, वही ये वो. बट शी स्टिल रीइन्वेंटेड, उसने फिर से कुछ ना कुछ नया कंटेंट किया. लाइक आई फील जैसे कि रूही दोसानी उसने किया था, वो अभी भी डांस कर रही है. आई वंडर वो कहां तक, आई एम वेटिंग फॉर हर रीइन्वेंशन टू हैपन. She is doing dances and she is doing brilliantly well. She is entertaining, ठीक है. बट अगर मैं उसके पेज पर जाऊं, if I'm scrolling, after a point of time, like बस हो गया. I'm just saying, she is great at what she is doing. वो उसका niche है, she is figured out dancing. But after a point of time, तुम्हारे उसमें आएगा, तुमको reinvent करना पड़ेगा. Tanmay did vlogs, he did vlogs ने क्या? अभी he is on reaction videos right now. He was not doing reaction videos. अभी वो रिएक्शन वीडियोस पे आ गया, बिकॉज रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए मैंने बनाया ना, मुझे पता है रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए 2 घंटे लगता है. एक दिन में आई कैन प्रोड्यूस 4 वीडियोस, ईच वीडियो गेटिंग 1 मिलियन और 2 मिलियन व्यूज. तुमको महीने का $5,000 ऐसे ही आ रहा है. मैं बिजनेस साइड, अब तो मैं मेरी बीवी के साथ बिजनेस साइड भी सोचने लग गया हूं. सो यू हैव टू री इन्वेंट एज वेल. दिस इज अगेन, वंस यू हैव बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, इफ यू currently are trying to become a content creator, please do what you love. Khalas, that is. Yes. So this I think will end. I think it was really nice. For me personally, reinvention. I have to do that. Okay, so thank you so much, Rohit. Thank you so much for your time. अरे थैंक यू सो मच. मेरा गिफ्ट हैम्पर किधर है? कॉफी करण में मिलता ना, किधर है? नेक्स्ट सीजन होगा. नेक्स्ट सीजन जब बजट आएगा तब. स्पॉन्सर. ठीक है. थैंक यू सो मच. चाओ. थैंक यू सो मच. चलो धमाल. Thanks यार. Thanks. मस्त है. Thanks. Listening to Rohit Bharti, famously known as Bhedu, has taught me personally as a content creator a lot of things, especially adapting and changing content and trying to evolve yourself. Because personally, I believe that content creation is going to keep evolving, and to be on this wave, you need to keep adapting with your content. I hope you enjoyed and you learned something, especially if you're a budding content creator. If you like this podcast, don't forget to hit a like, follow us on all other platforms, and yeah, keep listening. Till then, from Dubai, stay blessed.